Okay, first of all, good morning to all of you. By the grace of great God and great mighty, let us start our today's session. That is about the X-ray diffraction and Bragg's law. X-ray diffraction and Bragg's law, which is called a XRD. Which is called a XRD. XRD means X-ray diffraction. Please say all. X-ray diffraction and Bragg's law. Okay, so दो scientists थे W.L. Bragg and W.C. Bragg. ठीक है? These are the two scientists basically who discovered W.H. and W.L. Sorry, W.L. and W.H. These are the two scientists which basically discovered this phenomena. Okay? तो पहले हम बात करेंगे एक्स-रे डायफ्रैक्शन की. किसकी बात करेंगे? एक्स-रे डायफ्रैक्शन की. Because the Bragg's law is based upon the XRD. Bragg's law is based upon the XRD. X-ray diffraction पे वो based है. Okay? तो इसमें क्या है कि उसने क्या देखा, ब्रैग्स ने क्या देखा कि जो क्रिस्टल है, ठीक है, कि क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ अ स्टैक ऑफ अ सेवरल पैरेलल प्लेन्स. ठीक है, क्रिस्टल में क्या होते हैं, बहुत से पैरेलल प्लेन्स होते हैं और उन प्लेन्स में क्या होते हैं, एटम्स. क्या होते हैं? एटम. क्या होते हैं? एटम. और उन्होंने देखा कि जब भी एक्सरेज इंसिडेंट करती हैं उन प्लेन्स पे, जिन प्लेन्स में कौन कौन बैठे हुए हैं, एटम्स बैठे हैं, तो लाइट क्या होती है, रेगुलरली रिफ्लेक्टेड. क्या होती है? रिफ्लेक्टेड और डायफ्रैक्टेड. रिफ्लेक्टेड और डायफ्रैक्टेड. ओके, reflected or diffracted, and these successive planes are called Bragg's plane. Okay, so let us see the distribution. Let us say, see, this is a plane. एक plane हो गया. Let us these are the atoms. अब दूसरा जो plane आएगा वो उसके क्या होगा? Parallel. क्या होगा? Parallel. इनको cleavage planes भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Cleavage planes. Okay. And these successive cleavage planes are called Bragg's planes. Okay. ये देखो क्या बन रहा है ये बेसिकली. देखो फ्रेंड्स, ये क्या बन रहा है. ये एक वैसे भी बोल रही जैसे हम स्टैकिंग बोलते हैं. स्टैकिंग समझते हो आप हिंदी में, जिसको बोलते हैं डांग लगाना. बोरी के ऊपर बोरी, सीमेंट एक बैग के ऊपर दूसरा बैग, फिर तीसरा बैग, फिर चौथा बैग. वैसे ही ना, देखो एक प्लेन है, दूसरा उसके पैरेलल, तीसरा उसके पैरेलल, चौथा उसके पैरेलल. आज गेटिंग द पॉइंट? यस सर. तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक क्रिस्टल may be regarded as a stack of a several parallel planes. और हर एक प्लेन में क्या है कि all the planes have the uniform distribution of atoms. Uniform distributions of atoms. These empty circles are called, इसको बंद कर दे. These empty circles are called atoms. So these are Bragg's plane. These are Bragg's plane. Okay. Any doubt? No sir. मतलब क्या कि जब लाइट इन प्लेन्स में पड़ेगी, when the X-ray, कौन सी X-ray लेनी है हमने? मोनोक्रोमेटिक. कौन सी लेनी है? मोनोक्रोमेटिक X-ray. What's the meaning of monochromatic? Mono means single, chromatic means color. Single color means single frequency. Single frequency means single wavelength. वो लाइट जिसकी वेवलेंथ क्या हो, एक सिंगल वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या हो, सिंगल वैल्यू. ठीक है. तो ये है कि X-rays can be regularly reflected by these cleavage planes of the crystal, and these successive cleavage planes are collectively called Bragg's plane. And a crystal may be regarded as a stack of several parallel planes. स्टैकिंग हो रही है. क्या हो रही है? स्टैकिंग हो रही है. एक सीमेंट बैग के ऊपर दूसरा सीमेंट, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे भी हो सकती है, किसी क्रिस्टल में ऐसे भी हो सकती है. Are you getting my point? Yes. तो ये भी क्या है? These planes are parallel. These planes are parallel to each other. These planes are parallel to each other. तो any doubt? अब बात करते हैं, this is called a figure 1. अब मैं figure 2 बनाता हूं. ठीक है.
We are considering a monochromatic X-ray. We are considering a monochromatic X-ray. Monochromatic X-ray. हम उसकी क्या ले रहे हैं बेटा? बीम ले रहे हैं. क्या ले रहे हैं? बीम. We are considering a beam of monochromatic X-ray. अब बीम देखो, बीम में तो बहुत सी रेज होंगी, तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं उस बीम में से कोई दो रेज ले लेता हूँ. क्या ले लेता हूँ? कोई दो रेज ले लेता हूँ. रे नंबर 1 एंड रे नंबर 2. ठीक है. तो लेट अस से दिस इज रे नंबर 1 एंड लेट अस से दिस इज द रे नंबर 2, और दिस इज 1, दिस इज 2. वन एंड सेम थिंग, वन एंड सेम थिंग. This is 1, let us say this is 2, and this is reflected along this direction, and this is reflected along this direction. Okay, and out. This is called incident ray, and these are called reflected ray. Okay, let us इसको नाम देते हैं A. क्या नाम दिया मैंने? A, B, A, B, C, D, E, F. D, E, F. This is ray number 1. This is ray number 1. This is ray number 2. This is ray number 2. So I can say AB and DE. AB and DE. This is a beam. This is a beam. रे नंबर 1 और रे नंबर 2 में बहुत सी रेज होगी, बहुत सी रेज और भी बहुत होगी. आज गेटिंग द पॉइंट. तो हम सिर्फ दो कंसीडर कर रहे हैं ताकि हम उस अंडरस्टैंड को, कॉन्सेप्ट को समझ सके. ठीक है. तो दिस इज रे नंबर 1, दिस इज रे नंबर 2. रे नंबर, इसका मतलब दीस रेज, दीस एक्स रेज आर इंसिडेंट ऑन दिस एटम्स. तो ये एटम क्या कर रहे हैं? उन एक्स रेज को क्या कर रहे हैं? डायफ्रैक्ट. क्या कर रहे हैं? स्कैटर कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, डायफ्रैक्ट कर रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन BC and EF. Along the direction BC and EF. So we can say that AB and DE, AB and DE are the incident X-ray, are the incident X-ray, and BC and EF, BC and EF are diffracted X-rays, are diffracted or reflected X-rays. And out वो इंसिडेंट है, वो रिफ्लेक्टेड. अच्छा मेरे को ये बताइए कि रे नंबर 1 और 2 में से ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रैवल कर रही है? 1 और 2? या बराबर कर रही है? बराबर. अब देखिए, let us say this is the incident angle, this is incident angle theta, this is incident angle theta. It is also called a glancing angle. ये मान लीजिए थीटा प्राइम है, जो कि क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल. जो कि क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल. जो कि क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल है. इसको हम डायफ्रैक्टेड एंगल भी कह सकते हैं. ठीक है. अब देखो ये थीटा और थीटा प्राइम कब इक्वल हो गए? अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ. मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ जिसको मैंने नाम दिया G 90 डिग्री. ठीक है. इसी तरह मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ जिसको मैंने नाम दिया H. इसको मैंने नाम दिया H. इसको मैंने क्या नाम दिया? H. तो मेरे पास आया BH and EG. BH and EG. ये दिस इज द पाथ डिफरेंस. दिस इज द पाथ डिफरेंस. ये पाथ डिफरेंस है. पाथ डिफरेंस BH is equal to EG. BH is equal to EG. BH is equal to EG when theta is equal to theta. ये पाथ डिफरेंस है. ये क्या है? पाथ डिफरेंस. ये क्या है? पाथ डिफरेंस. BH is equal to EG. This is the पाथ डिफरेंस. और ये कब इक्वल होगा? जब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? सेम. क्या होंगे? सेम. नहीं तो अगर सेम नहीं होंगे, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल नहीं होगा, तो क्या होगा? जहां तो वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, दूसरे वाला जहां पहले वाला बढ़ जाएगा. Are you getting my point? जैसे हम बोलते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. वैसी बात है. Are you getting my point? Yes sir. तो मैंने लिखा पाथ डिफरेंस BH. पाथ डिफरेंस है BH. पाथ डिफरेंस है BH इज इक्वल टू EG. ओके. ये पाथ डिफरेंस है. ये क्या है? पाथ डिफरेंस है. क्योंकि ये देखिए ये रे यहां तक आई, तो इसका मतलब इसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किया और इस रे ने कम किया. रे नंबर, आज गेटिंग माय पॉइंट? रे नंबर 1 ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया एज कंपेयर टू दी रे नंबर 2 में. इसका मतलब देयर में भी सम पाथ डिफरेंस, देयर में भी सम पाथ डिफरेंस. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास दो बच्चे हैं, एक राम और एक श्याम. राम ने 10 मीटर किया और श्याम ने 8 मीटर किया. तो पाथ डिफरेंस कितना आया?
10 minus 8, 10 minus 8 that is equal to 2 मीटर, that is equal to 2 मीटर। तो पाथ डिफरेंस का ये फॉर्मूला होता है कि जब भी you can बाद में सर मैं कल जाना है देना कौन है? So path difference is equal to इसको बंद करना है। It means there will be some path difference. There will be some path difference between the ray 1 and ray 2. पाथ डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर। मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पे और यहाँ से किया यहाँ से, तो मेरे पास आया BH एंड मेरे पास आया EG। तो ये क्या हो गया? पाथ डिफरेंस। क्या हो गए? पाथ डिफरेंस। और ये पाथ डिफरेंस कब इक्वल हो गए? when theta is equal to theta prime, when incident angle is equal to the reflected angle, when incident equal to the incident angle is equal to the reflected angle। Are you getting my point? ये समझ आया कि नहीं आया? अब देखो जब रेडिएशन चलती है, जब एक रे चलती है, जब क्या चलती है? एक रे। अब फिर दोबारा से मोमेंटम बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? समय वहां तक पहुंचने में समय लगेगा, ठीक है। अब जब एक रे चलती है, जब एक इंसान चलता है तो बोलती है 10 मीटर और 7 मीटर। पहले ने 10 मीटर चला, दूसरे ने 7 मीटर चला और डिफरेंस कितना आया? 3 मीटर, ठीक है। अब रे का डिस्टेंस कैसे होता है? इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तब हम कैसे पाथ डिफरेंस निकालते हैं? लेट अस सी, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास जो एक रे है, दैट इज कॉल्ड अ रे 1, दिस इज कॉल्ड अ रे 1, दिस इज कॉल्ड अ रे 1 एंड दिस इज कॉल्ड अ रे 2, दिस इज कॉल्ड अ रे नंबर 2, ठीक है बेटा। ये रे नंबर 2 जा रही है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? वन साइकिल। इसको क्या बोलते हैं? वन साइकिल। क्या बोलते हैं? वन साइकिल। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 लैम्डा। क्या होती है? 1 लैम्डा। इसकी वैल्यू होती है 1 लैम्डा। तो ये कितना हो गया? 2 लैम्डा। लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा। तो अब मेरे को बताइए, ये नंबर 2 है। अब मेरे को ये बताइए व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव नंबर 1, बाय द रे नंबर 1? कितना किया टोटल डिस्टेंस? बताइए, इसने कितना पाथ ट्रेवल किया? लैम्डा। कितना किया? लैम्डा। मैं लिख देता हूं, पाथ ट्रेवल्ड बाय रे नंबर 1 इज इक्वल टू लैम्डा। एंड आउट? एंड आउट? यस और नो? सभी को समझ आ रहा है? चलो अभी दूसरे पे आ जाओ। अब मेरे को बताओ दूसरी रे ने कितना टोटल पाथ ट्रेवल किया? देखो यहाँ पे कितना हो गया? लैम्डा। ये कितना हो गया? लैम्डा बाय 2। तो इसका बेटा कितना हो गया? इसका पाथ हो गया, पाथ ट्रेवल्ड बाय 2 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2, तो हो गया 3 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2। तो पाथ डिफरेंस कितना आया? पाथ डिफरेंस आया, पाथ डिफरेंस कितना आया? पाथ डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। पाथ 2 माइनस पाथ 1, पाथ ट्रेवल्ड बाय रे नंबर 2 माइनस पाथ ट्रेवल्ड बाय द रे नंबर 1। तो कितना आंसर आया बेटा मेरा आया 3 लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा, मेरा आंसर आया लैम्डा बाय 2। मेरा डेल्टा कितना आ गया? लैम्डा बाय 2। दिस इज द पाथ डिफरेंस, दिस इज द पाथ डिफरेंस। ऐसे पाथ डिफरेंस निकालते हैं अगर कोई भी वेव चल रही है या रे चल रही है। समझ आई? गेटिंग माय पॉइंट? तो हम बोल सकते हैं, हिंदी में हम बोल सकते हैं कि रे नंबर 2 रे नंबर 1 से लैम्डा बाय 2 आगे चल रही है। जब ऐसे भी बोल सकते हैं कि रे नंबर 1 रे नंबर 2 से लैम्डा बाय 2 पीछे चल रही है, बोल सकते हैं ना। इसको साइंस में बोलेंगे, फिजिक्स में बोलेंगे रे नंबर 2 लीड्स, रे नंबर 2 लीड्स बाय द रे नंबर 1 बाय लैम्डा बाय 2 और रे नंबर 1 लैग्स बिहाइंड द रे नंबर 2 बाय लैम्डा बाय 2। आगे का मतलब लीड, पीछे का मतलब लैग। लैग करना हम बोलते हैं बच्चा बहुत लैग कर रहा है, आपका पीछे चल रहा है उसकी पढ़ाई, ठीक है। समझ आई? एंड आउट? चलो अभी आपको पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना पता लग गया। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट O है, ये मेरा सोर्स है, यहाँ से लाइट निकल रही है। यहाँ से एक लाइट निकली रे नंबर 1, एक लाइट निकली रे नंबर 2, ठीक है। OA बेटा से B। तो बताइए मुझे किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, OA ने या OB ने? OB ने। साफ पता लग रहा है ना? OB ने डिस्टेंस से ज्यादा ट्रैवल किया, पर कितना किया और कैसे पता लगेगा? Yes, we will drop a perpendicular from point O on the line OB। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। इसका मतलब एक नया पॉइंट आया C। इसका मतलब OA किसके इक्वल होगा?
ओसी के इक्वल होगा, है ना। ओए तक तो बराबर ही कर रहे हैं ऑलमोस्ट, तो कितना पाथ डिफरेंस आया, बीसी। कितना आया, ये एक्स्ट्रा पाथ है, तो बीसी इज द पाथ डिफरेंस, बीसी इज द पाथ डिफरेंस, डेल्टा व्हिच इज कॉल्ड अ डेल्टा, ये पाथ डिफरेंस है मेरा, ये है मेरा पाथ डिफरेंस। तो मोटी मोटी बात ये है कि इसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि पाथ डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस। हाउ टू कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस, सिंपली ड्रॉप अ perpendicular, simply drop a perpendicular from one point to the on the line, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है, तो हमारा क्या निकल आ जाएगा वहां से, पाथ डिफरेंस। क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस। ठीक है, समझ आई, समझ आई कि नहीं आई, आगे बढ़े। अच्छा, इसमें देखो, अगर ये पाथ डिफरेंस दो रेस के बीच में जो कि रिफ्लेक्ट कर रही है, डायफ्रैक्ट कर रही है, अगर ये पाथ डिफरेंस जहां तो 1 लैम्डा की इक्वल हो, जहां 2 लैम्डा की इक्वल हो, जहां 3 लैम्डा की इक्वल हो, जहां 4 लैम्डा की इक्वल हो, इसको हम बोल सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू एल लैम्डा, डेल्टा इज इक्वल टू एल लैम्डा, वेयर एल इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो बेटा इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और मेरे पास यहाँ पे कौन सी फ्रिंजेस बनेगी स्क्रीन पे, ब्राइट। कौन सी बनेगी, ब्राइट। कौन सी बनेगी, ब्राइट बनेगी। अगर ये पाथ डिफरेंस डेल्टा जो है वो जहां तो लैम्डा बाई 2 आए, जहां 3 लैम्डा बाई 2 आए, जहां 5 लैम्डा बाई 2 आए, इसको हम बोलते हैं इवन मल्टीपल, इसको बोलते हैं हम ऑड मल्टीपल। क्या बोलते हैं, इवन मतलब 2 नंबर डिविजिबल बाय 2, नहीं नॉट इवन, सॉरी इवन नहीं बोलेंगे, यही ऑड चाहिए, ठीक है। तो इसमें 1 भी तो आ रहा है ना, 3 भी आ रहा है, इसको बोलेंगे इंटीग्रल मल्टीपल। क्या बोलेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मींस इंटीजर वैल्यूज, 1 2 3 0 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 3 है ना, माइनस n2 प्लस n, ठीक है। तो अब इफ पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, देन वी हैव अ कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, वी हैव अ कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, बनाना का बिगाड़ना, बनाना का बिगाड़ना। हम कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन चल रही है मतलब बनाना, और डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, बिगाड़ना। बम गिर गया, डिस्ट्रक्शन हो गई, सब खत्म हो गया, ठीक है। तो जब कंस्ट्रक्टिव में होगा उसमें क्या होगी हमारे पास, ब्राइट फ्रिंजेस। क्या होगी बेटा, ब्राइट फ्रिंजेस। और अगर मेरा पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल के इक्वल होता है, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, तो मेरा क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। इसको मैं लिख सकता हूं 2n - 1 लैम्डा बाय 2, 2n - 1 लैम्डा बाय 2, where n is equal to 1, 2, 3। n 1 होगा तो लैम्डा बाय 2, 2 होगा तो 3 लैम्डा बाय 2, 3 होगा तो 5 लैम्डा बाय 2, 4 होगा तो 7 लैम्डा बाय 2। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव। कौन सी होगी, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगी। और मुझे क्या मिलेगी, डार्क मिलेगी, डार्क। ब्राइट फ्रिंज का मतलब होता है, क्या होता है कि जहां पे लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और डार्क का मतलब क्या होता है, जहां पे लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, मिनिमम। क्या होती है, मिनिमम, ठीक है, नहीं डाउट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने जो यहाँ पे डायफ्रैक्शन ली है वो एक ही प्लेन के डिफरेंट एटम से ली है। एक ही प्लेन के, प्लेन सेम है, प्लेन क्या है, सेम, बट एटम क्या है, डिफरेंट। वी आर टेकिंग अ डायफ्रैक्शन फ्रॉम द सेम प्लेन ऑफ द डिफरेंट एटम, सेम प्लेन ऑफ द डिफरेंट एटम। अब अगले केस में हम करेंगे, वी विल टेक द डायफ्रैक्शन फ्रॉम द डिफरेंट प्लेन एंड डिफरेंट एटम्स। प्लेन भी अलग होगा और एटम्स भी अलग होंगे। यहाँ पे तो प्लेन सेम है, एक ही प्लेन है ना। ये लेट अस से इसका नाम है mn, इसका क्या नाम है mn, ये pq, तो ये क्या हो गया rs, तो ये तो सेम ही प्लेन है mn, ठीक है। तो हमने एक ही प्लेन के अलग अलग एटम से हमने डायफ्रैक्शन ली है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, दिस इज कॉल्ड अ फिगर नंबर 1, दिस इज कॉल्ड अ फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 3 में हम क्या करेंगे कि अलग अलग एटम से हम क्या करेंगे, अलग अलग एटम से क्या लेंगे, डायफ्रैक्शन लेंगे, ठीक है। अलग अलग एटम से डायफ्रैक्शन लेंगे, फिर वहां से डायफ्रैक्शन लेने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस। क्या लेना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस। तो मैं देखूंगा कि कितना पाथ डिफरेंस आता है। अगर वो पाथ डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल आता है, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। अगर ऑड मल्टीपल आता है तो डार्क फ्रिंज।
समझाई? अगर वो पार्ट डिफरेंस एल लैम्डा की इक्वल आता है तो हम उसी को ब्रैग्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसमें कोई डाउट? No sir. Are you getting all the points? Yes sir. Yes or no? Yes sir. जोर से बोलो भाई। Yes sir. आगे फिगर नंबर 3 पे मैं आ रहा हूँ। अब हम लेंगे कि अलग प्लेन अलग है, ठीक है? और मैं बीम कौन सी ले रहा हूँ? मोनोक्रोमैटिक एक्स-रे। कौन सी ले रहा हूँ? चलो करते हैं, लेट अस स्टार्ट। मान लीजिए अगर एक रे ने डिस्टेंस ट्रैवल किया 6 लैम्डा, दूसरे ने किया 4 लैम्डा, तो कितना पार्ट डिफरेंस आया? 2 लैम्डा। क्या आया? 2 लैम्डा पार्ट डिफरेंस। तो मेरे पास क्या कौन सी सुपरपोजिशन होगी? कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव होगी, है ना? क्या होगी? और हमारी फ्रिंजेस क्या बनेगी? ब्राइट। क्या बनेगी? ब्राइट। ठीक है, समझ आई? अच्छा, मान लो मेरी रे नंबर 1 ने किया 7 लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस, ठीक है, और दूसरी ने किया 3 लैम्डा बाय 2। ये पहले का पाथ है, ये दूसरे का पाथ है। अब बताओ क्या होगा पार्ट डिफरेंस? क्या होगा? अब कंस्ट्रक्टिव होगी कि डिस्ट्रक्टिव होगी? दोनों का डिफरेंस लेना मुझे। डिफरेंस लेना। कितना आया? 7 लैम्डा बाय 2 माइनस 3 लैम्डा बाय 2 कितना आया? 4 लैम्डा। तो ये क्या आ गया? 2 लैम्डा आ गया। कौन सी हुई? कंस्ट्रक्टिव। कौन सी हुई? कंस्ट्रक्टिव। हाँ, अगर ऐसा होता 7 लैम्डा बाय 2 माइनस 2 लैम्डा होता, फिर कौन सा होता? 7 लैम्डा बाय 2 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा। पूरा डेल्टा आ गया 3 लैम्डा बाय 2। क्या आया? 3 लैम्डा। मेरा डेल्टा क्या आया? ऑड मल्टीपल। क्या आया? अब कौन सी बनेगी? डिस्ट्रक्टिव। कौन सी बनेगी? और कौन सी फ्रिंजेस होगी? ब्राइट और डार्क? ठीक है, ठीक है। ड्राइंग तो मेरी अच्छी नहीं है इतनी। ठीक है, अब बनी? यस सर। अब बनी, ठीक है। ये क्या है मेरी डी? ये क्या मेरी डी? दो प्लेन्स के बीच में दूरी। दो प्लेन्स के बीच में दूरी, इसको हम बोलते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। क्या बोलते हैं? इंटरप्लेनर स्पेसिंग। डी इज कॉल्ड इंटरप्लेनर स्पेसिंग। डी इज कॉल्ड इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ठीक है, ये मेरा प्लेन है एन। ये मेरा कौन सा प्लेन है? एन। ये मेरा कौन सा प्लेन है? डी क्यू। ये मेरा कौन सा प्लेन है? आर और एस। अब देखो प्लेन क्या है? प्लेन क्या है? अलग। प्लेन क्या है? अलग अलग। प्लेन क्या है? और एटम्स भी क्या है? अलग अलग। तो ये कुछ लाइट स्कैटर कर रहा है, डिफ्रैक्ट कर रहा है। ये कुछ लाइट क्या कर रहा है? स्कैटर और डिफ्रैक्ट कर रहा है या रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक ही बात है। तो इसको नाम देते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, इसको नाम दीजिए 1, इसको नाम दीजिए 2। ये 1 गई, ये 1, ये कौन सी है? 2। ठीक है, आप बताइए, कुछ नहीं करते अभी। ठीक है, कुछ नहीं करते। अब बताइए रे नंबर 1 ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया या 2 ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया? रे नंबर 2 ने। रे नंबर 2 हैज ट्रैवल्ड मोर डिस्टेंस एज कंपेयर्ड टू रे नंबर 1। तो कैसे निकालेंगे पार्ट डिफरेंस? देखो मैं क्या करूंगा, पार्ट डिफरेंस के लिए क्या करूंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। यहां से
यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया। सिमिलरली यहाँ से करूंगा, ठीक है। अब देखो, अब बराबर होगी ना, ठीक है। और ये डिस्टेंस कौन सा मेरा, ये वाला, ये तो डी है, ये क्या मेरा डी है। ठीक है, ये एंगल थीटा है, लेंसिंग एंगल, इंसिडेंट एंगल, ये एंगल क्या है, रिफ्लेक्टिंग एंगल, ये भी थीटा, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए ये एंगल अल्फा, ये एंगल क्या है अल्फा, ये एंगल क्या है अल्फा, ठीक है। और ये है, ये भी देखो MN भी BE के परपेंडिकुलर है, MN is also perpendicular to BE, जहाँ BE is perpendicular to MN, समझ आई कि नहीं आई? इसका मतलब ये सारा एंगल कितना हो गया 90, और ये एंगल भी क्या हो गया 90, ये एंगल क्या हो गया 90, ये एंगल क्या हो गया 90, ये परपेंडिकुलर है, ये सारा एंगल भी क्या हो गया 90, क्या हो गया 90। अब मुझे ये निकालना है एंगल GBH, मुझे कौन सा एंगल GBE, मुझे कौन सा एंगल निकालना है GBE। अच्छा, मेरा पाथ डिफरेंस क्या है, सबसे पहले बताइए पाथ डिफरेंस क्या है। मेरा पाथ डिफरेंस क्या है, किसके इक्वल आया, मेरा पाथ डिफरेंस आया GE प्लस EH, GE प्लस EH। तो रे नंबर 2 ने GE प्लस EH डिस्टेंस क्या है ज्यादा ट्रेवल किया। दिस इज माय पाथ, दिस इज माय पाथ डिफरेंस GE प्लस EH। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे GE निकालना है और EH को निकालना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आंसर, ठीक है। चलो आ जाओ। अब ये एंगल अल्फा है, अच्छा मैं लिख सकता हूँ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, लिख सकता हूँ। अगर थीटा प्लस अल्फा 90 है तो बेटा अल्फा कितना आया 90 माइनस थीटा, क्या आया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये है कि नहीं आया। और जो मेरा थीटा प्लस अल्फा है, ये क्या है मेरा एंगल ABG, ये मेरा एंगल क्या है ABG, एंगल ABG, एंगल ABG, मतलब ये सारा 90, ये सारा क्या है 90 एंगल, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। एंगल ABG इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो वहां से मेरा अल्फा आ गया 90 माइनस थीटा। लेट अस से दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एनी डाउट? अब देखो जो BE है, BE is perpendicular to MN, BE is perpendicular to MN। जो BE है वो MN के क्या है परपेंडिकुलर। का फिगर यहाँ पे बना रहा हूँ, ये फिगर बना रहा हूँ, B है, ये E है, ये M है, ये M है। इसका मतलब ये एंगल क्या हो गया 90 और ये भी क्या हो गया 90। अब मुझे ये तो पता है, अब इस एंगल इस 90 में से ये एंगल अल्फा है, ये मुझे निकालना है, ये मुझे निकालना है। और ये एंगल कौन सा है GBH, ये एंगल क्या है GBH। तो क्या मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस एंगल GBH इज इक्वल टू 90, लिख सकता हूँ ना, अल्फा प्लस GBH, अल्फा प्लस GBE, अल्फा प्लस GBE, ठीक है। ये क्या है मेरा G, ये क्या है B, ठीक है। अल्फा प्लस GBE तो क्या आ गया 90 डिग्री, तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस एंगल GBE इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेट अस से दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, यूज 2 in 3, यूज 2 in 3, 2 को 3 में यूज कीजिए, 2 in 3 तो कितना आया 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस GBE इज इक्वल टू 90, 90 कैंसल, तो मेरा GBE कितना आया थीटा आया, कितना आया थीटा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे थीटा? यस सर। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ थीटा, मेरा क्या आया थीटा। सिमिलरली ये जो एंगल है ये भी 90 है, ये एंगल क्या है 90, ठीक है। ये अल्फा होगा तो ये भी क्या होगा थीटा होगा, क्या होगा थीटा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आई कि नहीं आई? तो ये एंगल अल्फा, तो ये भी क्या हो गया थीटा। तो मैं लिख सकता हूं सिमिलरली एंगल क्या आया EBH, EBH इज इक्वल टू थीटा, एंगल EBH इज इक्वल टू थीटा। चेक कर दिया, सही किया मैंने, थीटा थीटा, वो थीटा वो थीटा, अल्फा इस तरफ है, अल्फा ही उस तरफ है, बीच वाला एंगल थीटा थीटा, बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ आई? यस सर। अब देखो
GBE भी थीटा है, EBH भी थीटा है। आप देखो ये छोटे से ट्रायंगल में GBE में तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? यस सर। 90 के सामने कौन होता है? हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। जो 90 डिग्री के सामने साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो बेटा मैं इस छोटे से ट्रायंगल में लेता हूं एक राइट एंगल ट्रायंगल, GBE। अच्छा BE मुझे पता है, BE क्या है? D है ना? तो GE क्या हो गया? परपेंडिकुलर। क्या हो गया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, GE अपॉन BE। GE अपॉन BE क्या आया मेरा? साइन थीटा। क्या आया? साइन ऑफ थीटा। क्या आया मेरा? साइन ऑफ थीटा। बड़ी साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन है हाइपोटेन्यूज। तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा क्या है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो BE मेरा कितना है? D। तो मेरा GE कितना आया? GE आया मेरा D sin थीटा। GE मेरा क्या आया? D sin थीटा। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। मेरा GE कितना आया? D sin थीटा। कितना आया? D sin। अब इसी तरह से इस ट्रायंगल में देखिए EBH में। EBH में क्या होगा? ये D है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी D sin थीटा आ गया है ना? यस सर। EH अपॉन D, EH अपॉन D इज इक्वल टू sin थीटा। तो EH इज इक्वल टू क्या आ गया? D sin थीटा। तो मैं लिख सकता हूं सिमिलरली EH इज इक्वल टू D sin थीटा। इक्वेशन नंबर 5। यूज 4 and 5 in 1। यूज 4 and 5 in 1। यूज 4 and 5 in equation 1 we get कितना आंसर आया मेरा? D sin theta plus D sin theta कितना आया? 2D sin theta। डेल्टा इज इक्वल टू D sin theta प्लस D sin theta इज इक्वल टू 2D sin theta। तो ये मेरा क्या आया? पाथ डिफरेंस। क्या है बेटा मेरा? पाथ डिफरेंस। क्या है मेरा? पाथ डिफरेंस। और ये पाथ डिफरेंस अगर 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा या 5 लैम्डा के इक्वल होगा तो मुझे क्या मिलेगी? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और मुझे मिलेगी ब्राइट फ्रिंज। ओके, मैं लिखता हूं इफ 2D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। कैसे लिखो? फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन 2D sin theta is equal to n lambda, where n is equal to 1, 2, 3 and so on so forth. And this 2D sin theta is equal to n lambda is called a Bragg's law. It is called a Bragg's law or Bragg equation. This is called a Bragg's law or Bragg's equation. This equation 2D sin theta, बोलो 2D sin theta, 2D sin theta is equal to n lambda is equal to n lambda is called Bragg's law or Bragg's equation. Bragg's law or Bragg's equation. Any doubt? ये जो ट्राइंगल है ये मैं अलग से बना देता हूँ यहाँ पे, जिनको नहीं समझ आएगी ना यहाँ पे बना देता हूँ। देखो ये क्या है? B, ये क्या है? G, ये क्या है? E, BGE और G पे है 90 डिग्री। BE क्या है? D, BE क्या है? D। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। और ये क्या हो गया? बेस। ये एंगल क्या है? थीटा। ये एंगल क्या है? पता लग गया? इसी तरह से ये छोटे ट्रायंगल EBH में, ठीक है, EH by D, EH by D is equal to sin थीटा। तो EH कितना आया? D, हाँ EH कितना आया? D sin थीटा। दोनों को इक्वेशन 1 में यूज किया। D sin थीटा प्लस D sin थीटा इज इक्वल टू 2D sin थीटा इज इक्वल टू n lambda इज इक्वल टू व्हिच इज कॉल्ड अ Bragg's law और Bragg equation। एनी डाउट? समझ आया? Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir.